Dear students, Assalamu alaikum and welcome to grade 10. From Noor School and College Mansehra, I am your teacher Muhammad Awais Kashmiri. Dear students, today we are going to discuss the first part of the unit number 2, the champions. Dear students, this unit is adapted from Amigo Brothers by Pyrie Thomas with slight modifications to suit social and cultural sensitivities. Dear students, this unit is about true friendship that even two friends have a lot of difficulties, but they stood firm in their friendship and they didn't let their friendship go anywhere. Dear students, today we will discuss the first part of unit number 2. In the first part, we will discuss following 4 points. Two friends who are boxers, how they physically looked. Number 3, what were their achievements? World Lightweight Boxing Championship, and the fifth point would be National Boxing Championship and these two friends. So today we are going to discuss unit number 2 part 1. Dear students, now we come toward reading the first para. Ahmed, Ali and Gulsher were classmates. अहमद अली और गुलशेर हम जमात थे. Means they both were reading in the same class, in the same grade, studying in grade 10 in government school. वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे 10वीं जमात में. सिचुएटेड इन द इम्पोवरिश्ड गुर्बत ज़दा पुअर, जो कि वाक़या था, सिचुएटेड वाक़या था एक गुर्बत ज़दा नेबरहुड ऑफ लियारी कराची, कराची लियारी के पड़ोस में. मीन वो गुर्बत ज़दा इलाके कराची लियारी के पड़ोस में वाक़या था. Means they both were studying in a school which was situated in an impoverished area of Karachi. They were so together in friendship that वो इतने गहरे दोस्त थे कि they felt themselves to be brothers. वो एक दूसरे को अपना भाई समझते थे. Means they were like brothers. They were considering themselves each others as brothers. वो इतने गहरे दोस्त थे कि एक दूसरे को भाइयों की तरह समझते थे. They had known each other since childhood. वो बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे. Means they were friends from their childhood. Growing up on the lower eastern side of लियारी river. वो कहाँ पले बड़े थे? मशरकी लियारी के निचले साइड पर. Means they grown up in लियारी on the lower side of the लियारी river. Gulsher was fair. Now we are moving to our second point. First point we are discussing two friends, Gulsher and Ahmed Ali. Now we are moving toward the second point, that how they looked like, what was their physical appearance. Gulsher was fair. Means Gulsher was fair by color, lean, weak, दुबला पतला, and lanky and long, लंबा. गुलशेर रंग का साफ, दुबला पतला और लंबा था. His family had moved from Khyber Pakhtunkhwa to
कराची बिफोर हिज बर्थ। उसकी फैमिली, उसका ख़ानदान उसकी पैदाइश से पहले खैबर पख्तूनख्वा से कराची मुंतकिल हुआ था, कराची हिजरत की थी। मीन्स they are basically from Khyber Pakhtunkhwa. His family moved from Khyber Pakhtunkhwa to Karachi before his birth. Ahmad Ali was Shidi, dark means in color, short and husky, strong. What was the physical appearance of Ahmad Ali? That he was Shidi, dark, short and husky. वो तेज़, वो शीदी, सयाह, छोटा और मजबूत आदमी था। So we discussed the physical appearance of Gulshair and Ahmad Ali. Gulshair was fair, lean and lanky, while Gulshair was fair, lean and lanky, while Ahmad Ali was sheedy, dark and short. Gulshair's hair was always falling over his eyes. गुलशेर के बाल उसकी आँखों पर पड़े रहते थे। While Ahmad Ali wore his black hair in a natural afro style. Afro style means curly hair. जबकि अहमद अली के बाल अफ्रीकियों की तरह थे, यानी करली बाल थे, घुंघराले बाल थे। So Gulshair hair was falling over his eyes, while Ahmad Ali's hair were like African people. Each youngster has a dream of someday becoming a lightweight boxing champion of the world. हर एक नौजवान का एक ख्वाब है कि वो लाइट वेट आलमी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीते। मीन दे वांटेड टू बी द हीरो ऑफ लाइट वेट बॉक्सिंग चैम्पियन ऑफ द वर्ल्ड। टू अचीव दिस चेरिश्ड ड्रीम मीन दिस ब्यूटिफुल विश, इस खूबसूरत ख्वाब को पाने के लिए दे वुड स्ट्राइव हार्ड डे एंड नाइट। मीन्स दे वर्कड हार्ड डे एंड नाइट। इस खूबसूरत ख्वाब को पाने के लिए वो दिन रात सख्त मेहनत कर रहे थे। अर्ली मॉर्निंग सनराइज वुड फाइंड देम रनिंग अलॉन्ग द रिवर लेयरी। अर्ली मॉर्निंग सनराइज, सुबह का सूरज, वुड फाइंड देम उनको पाता था, रनिंग अलॉन्ग द रिवर लेयरी, लेयरी के दरिया के साथ साथ भागते हुए। मतलब सुबह का सूरज उनको दरिया के साथ भागते भागते पाता था। मीन दे हैड अ हैबिट दैट दे got up early in the morning and used to run along the Leari river and would attend the boxing club daily without any break. और वो बॉक्सिंग क्लब में भी रोज़ाना जाते थे बग़ैर किसी वक्फे के। मीन्स दे यूज़ टू गो टू बॉक्सिंग क्लब डेली। दे हैड अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, उनके पास तस्वीरों का मजमुआ था। हुज़ पिक्चर्स ऑफ फेमस बॉक्सर्स, मशहूर बॉक्सर्स की। उनके पास मशहूर बॉक्सर्स की तस्वीरों का मजमुआ था। कौन कौन से बॉक्सर्स? लाइक जो लुइस, एवेंडर हॉलीफील्ड, रॉकी मार्सियानो, जो फ्रेजियर, मोहम्मद अली एंड माइक टायसन। उनके पास जो लुइस, एवेंडर हॉलीफील्ड, रॉकी मार्सियानो, जो फ्रेजियर, मोहम्मद अली और माइक टायसन जैसे मशहूर बॉक्सर्स की तस्वीरों का मजमुआ था। सो फ्रॉम दिस वी कैन गेस दैट दे वर फॉन्ड ऑफ बॉक्सिंग। नाउ वेयर डिड दे गेट दीज पिक्चर्स? कट आउट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ये तस्वीरें उन्होंने काटी थीं पुराने अखबारों से और मैगज़ीन से। डियर स्टूडेंट्स, डियर नूरियंस, दे वर फॉन्ड ऑफ बॉक्सिंग एंड इवन दे हैव कट the pictures of famous boxers like Mike Tyson, Muhammad Ali, Joe Frazier,
Marciano, Evander Holyfield, Joe Louis, and kept them with themselves. If asked a question about any given fighter, अगर उनसे इन बॉक्सरों के बारे में कोई भी सवाल किया जाता, they would immediately zip out from their memory. वो फ़ौरन से अपनी यादाश्त से बाहर निकाल फेंकते थे. Zip out mean let it out. जब उनसे इन बॉक्सरों के बारे में कोई सवाल किया जाता, वो अपनी यादाश्त से फ़ौरन बाहर निकाल फेंकते थे. क्या क्या निकाल फेंकते थे? रैंक्स, उनके दर्जे, डिवीजन्स, उनके दर्जे, वेट्स, वज़न, रिकॉर्ड्स, उनके रिकॉर्ड ऑफ फाइट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ फाइट्स, उनकी लड़ाइयों के रिकॉर्ड. वो अगर उनसे इन बॉक्सरों के बारे में पूछा जाता तो वो फ़ौरन से अपनी यादाश्त से उनके दर्जे, उनका वज़न, उनकी लड़ाइयों के रिकॉर्ड बाहर निकाल फेंकते थे. नॉकआउट्स, नॉकआउट मीन the fights in which they have knock out the other fighters directly out of game. Technical knockouts, टेक्निकल नॉकआउट्स एंड ड्राज और बराबर मुकाबले, इक्वल और लॉसेस या उनकी शिकस्तें. जब उनसे इन बॉक्सरों के बारे में पूछा जाता तो वो अपनी यादाश्त से इनके दर्जे, इनके वज़न, उनकी लड़ाइयों का रिकॉर्ड, उनके नॉकआउट्स, उनके तकनीकी नॉकआउट्स, उनके बराबर मुकाबले और शिकस्तें फ़ौरन से बाहर निकाल फेंकते थे. मीन्स दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट all these boxers. Each had fought many fights and had won many medals. Mean both the friends have fought a lot of fights and won many medals. दोनों ने, हर एक ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थीं और बहुत से मेडल जीते थे. They were equally good boxers. वो दोनों अच्छे बॉक्सर्स थे. द डिफरेंस वॉज इन देयर बॉक्सिंग स्टाइल. वेयर वॉज द डिफरेंस? द डिफरेंस वॉज इन देयर बॉक्सिंग स्टाइल. उनके बॉक्सिंग के तर्ज में फ़र्क था. सो गुल्स लीन फॉर्म एंड लॉन्ग रीच मेड हिम द बेटर बॉक्सर. गुल्स long reach means he was a long man, he was a gigantic one. So his long reach, उसका लंबा कद, made him the better boxer, उसने उसको बेहतरीन बॉक्सर बना दिया था. While Ali's short and muscular frame, जबकि अली का शॉर्ट, छोटा कद, एंड मस्कुलर फ्रेम और मजबूत जिस्म, स्ट्रॉन्ग बॉडी, मेड हिम द बेटर स्लगर, हार्ड फाइटर, हार्ड हिटिंग फाइटर. स्लगर मीन कारी ज़र्ब लगाने वाला, हार्ड हिटिंग फाइटर. जबकि अली के छोटे कद और मजबूत जिस्म ने उसे कारी ज़र्ब लगाने वाला फाइटर बना दिया था. मीन्स बोथ हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. गुल हैड लॉन्ग रीच and that made him a different boxer, while Ali had short reach but he was strong and better slugger, hard hitting fighter. So both had different characteristics regarding their boxing. Whenever they had met in the ring for friendly fight, जब कभी भी वो दोस्ताना लड़ाई के लिए रिंग में मिले, इट हैड ऑलवेज बिन हॉट एंड हैवी कॉन्टेस्ट. वो हमेशा कांटे का मुकाबला रहा. जब भी वो रिंग में दोस्ताना मुकाबले के लिए मिले, वो हमेशा से कांटे का मुकाबला रहा, कांटेदार मुकाबला रहा. वंस दे वर फाइटिंग फ्रॉम 2 different poles. एक दफ़ा वो 2 अलग साइड से लड़ रहे थे फॉर नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियन. किसके लिए? नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में. एंड द विनर ऑफ द फाइनल वॉज
to represent the country in World Lightweight Boxing Championship. And the winner of the final, और फाइनल जो जीतेगा was to represent, उसको नुमाइंदगी करनी थी for national for the country, अपने मुल्क की इन वर्ल्ड लाइट वेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, वर्ल्ड लाइट वेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में एक दफ़ा वो नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के मुकाबलों में लड़ रहे थे, मुकाबलों में हिस्सा ले रहे थे, और इन मुकाबलों में फ़ाइनल जीतने वाले को वर्ल्ड लाइट वेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करनी थी. मीन्स they both were participating in a national championship and the winner of the final had to represent his country in World Lightweight Boxing Championship. So dear students, we have discussed so far first 3 points, that two friends, they were boxers, their physical appearance, their achievements, that they had won many medals, and they were fighting in national boxing championship, and the winner of the final had to represent his country in World Lightweight Boxing Championship. Now we are moving toward the point that what happened when they were in national boxing championship. After a series of elimination fights, बहुत सारी अखराजी लड़ाइयों के बाद, after a number of fights of the competitions of national boxing championship, they had been informed that, उनको ये बताया गया, they were to meet each other in the final, कि उनको इस फाइनल में आपस में मिलना होगा, यानी ये फाइनल मुकाबला उन दोनों के दरमियान होगा. That was scheduled, that was planned to be held on the 14th of August, जो 14 अगस्त को होना है, 2 weeks away, 2 हफ्ते बाद. So when they were participating in national boxing championship, they were informed that they are the finalists of this championship, they are the finalists of national boxing championship. And what was the thing, that who will win the national boxing championship, he will represent the country in world lightweight boxing championship. उनको बताया गया कि इस फाइनल मुकाबले में उन दोनों का मुकाबला होना है, जो 14 अगस्त को होगा, 2 हफ्ते बाद. मीन they two good friends are the finalists of the national boxing championship, and the winner will be the representative of the country in world lightweight boxing championship. The two boys continued to run together. अब उनको पता भी था कि वही दोनों फाइनलिस्ट हैं, उन दोनों के दरमियान फाइनल होना है, लेकिन they stood firm, they showed their friendship towards each other. The two boys continued to run together. उन दो दोस्तों ने साथ में अपना भागना जारी रखा. But even when joking with each other, जब वो एक दूसरे के साथ मजाक भी करते, they both had sensed that, they both had felt that, उन दोनों ने ये महसूस किया, a wall was rising between them, कि उनके दरमियान एक दीवार खड़ी हो रही है. So even without knowing that they both are the finalists, they ran continuously with each other. Even when joking, they felt that a wall is rising between them. One morning, less than a week before their bout, एक सुबह उनकी लड़ाई से पहले की बात है ये, a morning before their fight, they met as usual for their daily workout. Means they met as they daily meet with each other. वो ऐसे ही मिले जैसे वो रोज़ाना अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए मिलते हैं. Running lightly along the river edge, दरिया के किनारे आहिस्ता आहिस्ता भागते हुए. गुल glanced at Ali, गुल looked at Ali, गुल ने अली को देखा. Who kept his eyes
purposely straight ahead means who kept his eyes deliberately straight ahead, जिसने जानबूझकर अपनी नज़रें सामने रखी हुई थीं. pausing from time to time to throw fists, रुक रहा था वक्त के साथ साथ. to throw fists और मुक्के मार रहा था. at an imaginary jar, एक तसव्वुराती जबड़े पर means he was hitting at imaginary jars. After some time he used to stop and hitting at imaginary jars. वो कुछ वक्त के बाद रुक रहा था और तसव्वुराती जबड़ों पर मुक्के मार रहा था. गुलशेर ने ये महसूस किया कि अली ऐसा कर रहा है, अहमद ऐसा कर रहा है. आफ्टर अ माइल or so, एक मील या इस तरह के कुछ फासले के बाद अली puffed and said, अली खनखारा, अली कफ्ड, puffed mean कफ्ड. अली खनखारा and said और कहा, let's stop for a while, आओ कुछ वक्त के लिए रुकते हैं. ब्रो, भाई, कुछ वक्त के लिए रुकते हैं भाई. I think we both got something to say to each other. He said, I think we have got something to say to each other, कि हमें शायद एक दूसरे से कुछ कहना है. गुल nodded. Nodded means shaved head, सर हिलाना. गुल ने सर हिलाया. It was not natural to be acting, ऐसा होना फितरी अमल नहीं है. As through nothing unusual, कोई भी चीज़ गैर अमूमी नहीं है. Was happening when two star players, जब दो स्टार खिलाड़ी and bosom friends और जिगरी यार were going to fight each other, एक दूसरे के साथ लड़ाई करने जा रहे हैं. within a few short days, कुछ ही मुख्तसर दिनों में. क्या कहा उसने कि ये मुझे पता है बिल्कुल भी एक फितरी अमल नहीं है कि दो जिगरी यार और स्टार खिलाड़ी कुछ दिनों बाद एक दूसरे से लड़ाई करने जा रहे हैं. मीन दिस थिंग इज़ नॉट यूजुअल, दिस इज़ though it is natural but it is unusual thing for them that they are fighting against each other. They rested their elbows on the railing separating them from the river. Means they put their elbows on grill which separated them from river. दरिया के किनारे लगी ग्रिल पर उन्होंने अपनी कोहनियाँ रखीं. अली broke the silence, अली ने खामोशी तोड़ी. Man, I don't know how to come out with it, मुझे नहीं पता कि इसका मुकाबला कैसे करना है. यानी ये जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, how to come out with it, कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए. गुल helped, गुल ने मदद की. It's about our fight, right, ये हमारी लड़ाई के बारे में है, ठीक. Yeah, right, हाँ बिल्कुल ठीक. I have been thinking about it too, मैं भी इसी के बारे में सोचता रहा हूँ. बड़ी फ्रेंड, उसने क्या कहा, हाँ मैं भी इसी के बारे में सोचता रहा हूँ दोस्त. In fact, since we found out it was going to be me and you, दर हकीकत जब से मैंने ये सोचा है कि ये मैं और तुम होंगे, यानी हमारे दरमियान मुकाबला होगा. I have been awake at nights, मैं रातों को जागता रहा हूँ. Pulling punches on you, तुम पर मुक्के ताने रखता रहा हूँ, यानी तुम पर मुक्काबाजी करते रहा हूँ. Hitting you, fighting with you, trying not to hurt you. Look at their friendship. क्या कहता है कि मैं रातों को जागता रहा हूँ, तुमसे मुक्काबाजी करता रहा हूँ, यानी ख्वाबों में, और लेकिन फिर भी तुम्हें तकलीफ़ दिए बग़ैर तुमसे मुक्काबाजी भी करता रहा हूँ. सेम हेयर, इधर भी ऐसा ही है. इट इज़ नेचुरल टू थिंक अबाउट द फाइट, लड़ाई के बारे में सोचना फितरती है. आई मीन वी बोथ आर आउटस्टैंडिंग फाइटर्स, मेरा ख़याल है कि हम दोनों ही गैर मामूली फाइटर्स हैं, गैर मामूली बॉक्सर्स हैं. एंड वी बोथ वांट टू विन,
और हम दोनों जीतना चाहते हैं। इट इज़ वेरी नेचुरल दैट एवरीवन वांट्स टू विन, बट ओनली वन ऑफ अस कैन विन, लेकिन हम में से सिर्फ एक जीत सकता है। देयर इज़ नो ड्रॉ इन द एलिमिनेशन। आपको पता भी है कि जो भी ये अखराजी तरीका होगा उसमें बराबरी का कोई चांस नहीं है। इट इज़ अ नॉकआउट सिस्टम दैट वन मस्ट हैव टू विन, वन मस्ट हैव टू विन। एक को ज़रूर जीतना है। ये कोई ऐसे मैच तो नहीं है कि कोई ड्रा भी हो जाएगा, कोई मुकाबला बराबर भी हो जाएगा। ये तो फाइनल है, किसी एक का जीतना ज़रूरी है। अली टेप्ड गुल मीन्स अली प्रेज्ड गुल जेंटली, नरमी से, ऑन द शोल्डर। अली ने नरमी से गुल का कंधा थपथपाया। आई डोंट मीन टू साउंड लाइक आई एम बेगिंग, आई एम ब्रैगिंग, मीन्स आई एम नॉट बोस्टिंग, आई एम नॉट बम्बार्डिंग। वो कह रहा है कि मैं कोई लफ्ज़ी गोलाबारी नहीं कर रहा। डियर स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग द फोर्थ पॉइंट दैट व्हाट हैपेंड टू देम when they were fighting against each other in final. They were two friends, so they were facing a lot of problems. But I want to win fair and square. But I want to win fair and square means I want to win clearly. मैं शफाफाना तरीके से जीतना चाहता हूँ। गुल nodded quietly. गुल ने आराम से सर हिलाया। वी बोथ नो दैट इन द रिंग द बेटर मैन विंस। हम दोनों को पता है कि बेहतर फाइटर ही रिंग में जीतेगा या जीतता है। फ्रेंड और नो फ्रेंड, कोई दोस्त हो या ना हो, ब्रदर और नो, कोई भाई हो या ना हो, लेकिन रिंग में कौन जीतता है? बेहतरीन लड़ने वाला जीतता है। दे शुक हैंड्स एंड डिपार्टेड to confront each other in the ring. उन्होंने हाथ मिलाया and departed और अलग हो गए to confront मुकाबले के लिए each other एक दूसरे के साथ in the ring रिंग में। वो रिंग में एक दूसरे के साथ मुकाबला करने के लिए अलग हो गए और उन्होंने हाथ मिलाया। Walking the streets had not relaxed अली। गलियों में चलने से अली को सुकून नहीं मिला। द मोर ही थाट अबाउट द फाइट, जितना वो लड़ाई के बारे में सोचता, द मोर परप्लेक्स्ड ही फेल्ट, परप्लेक्स्ड, प्रेशराइज्ड, प्रेस्ड, इतना ही ज़्यादा वो उलझता हुआ महसूस कर रहा था। जितना वो लड़ाई के बारे में सोचता, इतना ही वो उलझता हुआ महसूस कर रहा था। लॉस्ट इन थाट्स ही लेट हिमसेल्फ क्वाइटली, सोचों में गुम उसने अपने आप को खामोशी से कहा। खामोशी से वो दाखिल हो गया। इनटू हिज अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट में, अपने घर में। एंड वेंट स्ट्रेट टू बेड, और सीधा बेड पर चला गया। फॉलिंग इनटू अ रेस्टलेस एंड फिटफुल स्लीप, और बेचैन और बेसुकून सी नींद में चला गया। मतलब वो सोचों में गुम खामोशी से अपने घर में दाखिल हुआ और बेसुकून और बेचैन सी नींद में चला गया। विद साउंड्स ऑफ गोंग। गोंग मीन्स हैमर, वो हथौड़ा जो बॉक्सिंग रिंग के बाहर बजाया जाता है फॉर राउंड 1। और उसके जहन में क्या चल रहा है? उसे किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं? बॉक्सिंग रिंग में चलने वाले हथौड़े की आवाज़ें आ रही हैं। व्हेन गुल रीच्ड होम, जब गुल घर पहुंचा, ही मेड हिज वे टू द रूफ टॉप, वो छत पर चला गया। मीन ही वेंट टू द रूफ ऑफ हिज होम इन द क्वाइट अर्ली डार्क, सुबह सवेरे अंधेरे में ही पीयर्ड बिलो वेयर द लाइट्स ऑफ द सिटी ब्लिंक्ड, उसने नीचे शहर की टिमटिमाती हुई रोशनियों को देखा। ही लुक्ड एट द ब्लिंकिंग लाइट्स ऑफ द सिटी कराची, एंड the sounds of cars mingled with the shout, means the sounds of the cars mixed with the shout and the laughter of children, मतलब कि
गाड़ियों की आवाज़ें बच्चों के शोर और हंसने की आवाज़ों में मिक्स हो गई, मतलब कि सुबह हो गई। इतना इतना वो बेचैन थे कि वो सोया ही नहीं, रात को छत पर था और रोशनियां देखता रहा टिमटिमाती हुई, और यहाँ तक कि सुबह हो गई और गलियों में बच्चों का शोर और गाड़ियों का शोर आपस में मिक्स हो गया। इन द स्ट्रीट, गलियों में। ऑन द स्ट्रीट ही वॉज साउंड्स ऑफ कार्स, गाड़ियों का शोर बच्चों की हंसी और शोर में मिक्स हो गया। ही वॉज पासिंग सम हैवी टाइम ऑन हिज रूफ टॉप, ही वॉज पासिंग फ्रॉम डिफ़िकल्ट टाइम ऑन द रूफ, मतलब कि वो घर की छत पर मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। हाउ वुड द कमिंग फाइट अफेक्ट हिज रिलेशनशिप विद अली, मीन्स हाउ वुड द कमिंग fight will affect the relationship of two friends, दोनों दोस्तों के ताल्लुक़ को आने वाली लड़ाई किस तरह असरअंदाज करेगी, आने वाली लड़ाई दोनों दोस्तों के ताल्लुक़ पर किस तरह असरअंदाज होगी। So dear students, we have learned a few things in this lecture. The first thing that we have learned was two friends, that we have two friends, Ahmed and Gulsher. The second thing, that what was the physical appearance. So Gulsher was fair, lean and lanky, while Ahmed was shady, dark, short and husky. So what were their achievements? They each had fought many fights and had won many medals. World Lightweight Boxing Championship. So there was going to be a World Light Boxing Championship, and the winner of National Boxing Championship had to participate, had to represent his country Pakistan in World Lightweight Boxing Championship. So what happened when they both knew that they are going to fight against each other, mean they both are the finalists, so they were very perplexed and they didn't want to fight against each other, but they were standing firm in their friendship, that their friendship should not be in bad situation, mean their friendship should be firm, their friendship should not find anything which can change them, they both should be as solid as they are now. So dear students, here I have homework for you people. In the next unit we will go for the next part of the unit, but what is your homework? Question number 1, what was the dream of Ahmed, Ali and Gulsher? Number 1. Number 2, why was the fight so important for Ali and Gulsher? So these two questions are your homework. Thank you for watching and keep in touch, so you will get, inshallah, you will improve a lot, and I hope you will submit your homework in time. Thank you so much.